آف پاکستان نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ پنجاب انتخابات اور ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر حکومتی اتحاد کی 2 بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دونوں جماعتوں کے مالی امور سے متعلق وزراء اور ماہرین شریک ہوں گے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر ویر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ پینشن میں 5% اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ 80 سال سے زائد عمر کے افراد کی پینشن میں 20% اضافہ کیا ہے۔ نو منتخب میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد آج اپنے حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری کراچی میں گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان میئر اور ڈیپٹی میئر سے حلف لیں گے۔ آج سندھ بھر میں ہیڈ آف کونسلز کی حلف برداری ہوگی، جس سے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کشتی الٹنے کے حادثے پر قومی سوگ منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں قومی پرچم سرنگو رہے گا اور جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ کمیٹی لاہور اور کراچی میں گرفتار ایجنٹوں سے متعلق جانچ پڑتال کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے FIA سے بھی ریکارڈ طلب کر لیا۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے کشتی حادثے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے چیئرمین DG نیشنل پولیس بیورو احسان صادق ہوں گے۔ حکومت کشتی سانحے کا شکار افراد کے خاندانوں کو ہر قسم کی بھرپور معاونت کرے گی۔ رانا ثناء اللہ کا بیان، کہا کہ یونان کشتی حادثے میں اموات کا ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ ملک بھر کے عوام اپنے بھائیوں کے دیار غیر میں اموات پر سوگوار ہیں۔ پاکستان بھر میں سانحے پر قومی سطح پر سوگ منایا جا رہا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ PDM کا اتحاد بکھر رہا ہے۔ کل سے اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ عملی طور پر یہ اتحاد ختم ہو چکا ہے، اب اعلان کرنا باقی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میں آج عدالت میں پیش ہوا، میرے وکیل علی بخاری تیار تھے، انویسٹیگیشن آفیسر تھوڑے سے کنفیوز تھے۔ جو کشتی کا واقعہ ہوا اس میں 300 سے زائد پاکستانی ہلاک ہوئے۔ وزیر اعظم نے سوگ کا اعلان کیا، درست کیا، انکوائری کے لیے کمیشن بنایا، ٹھیک بنایا۔
हम अपने 300 पाकिस्तानियों का सोग मना रहे हैं। लोग बेरोजगारी और मौशी कत्ल आम से बचने के लिए यूनान के समुंदर में शहीद हो गए। शेख रशीद का बयान, कहा कि ये पहला वाकया नहीं है। जब 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए का होगा तो लोग जहर का घूंट पीने पर मजबूर होंगे। मौशी, इक्तिसादी और सियासी तबाही, कारखाने बंद, कारोबार बंद। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि इस अंधेरे से कैसे निकला जाए। पाकिस्तान में जिल-हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जिसका बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। वजारत मजहबी अमूर, पार्कों, महकमे मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि रोयत हलाल कमेटी की जोनल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका शहरों में होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने के बायस मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जा बहक, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू, लकी मरवत, टीआई खान और मानसहरा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश और तूफान के बायस 16 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर, ठंड पा गए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब इंतखाबात और रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट केस के समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि आर्टिकल 188 के तहत अदालत को नजरसानी का इख्तियार है। आर्टिकल 188 के तहत कोई हद मुकर्रर नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी का इख्तियार कानून साजों के पास मौजूद है। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? अदालत को हकायक को भी मद्देनजर रखना होगा। अगर नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या तफरीक नहीं होगी? आइंदा माली साल के बजट पर हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास आज होगा। इजलास में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और दोनों जमातों के माली अमूर से मुतल्लिक वुज़रा और माहिरीन शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्वात में जलसे से खिताब के दौरान वजीर आजम से बजट में वादे पूरे न करने का शिकवा करते हुए खबरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा न मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद आज अपने हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी कराची में गुलशन जना पोलो ग्राउंड में मुनक्किद होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लेंगे। हुकाम के मुताबिक आज सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हल्फ बर्दारी होगी, जिससे सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद 15 जून को मेयर और डेप्यूटी मेयर मुंतखब हुए थे। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान को 160 वोट मिले थे। दूसरी जानिब पंजाब की निगरान हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया है और पेंशन में 5% इजाफा किया जा रहा है, जबकि 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की पेंशन में 20% इजाफा किया जाएगा।
आमिर मीर ने बताया कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा किया गया है, जबकि सूबे के तरक्याती अखराजात 325 अरब रुपए होंगे। निगरान वजीर इत्तलात का कहना था कि निगरान वजीर आला का फौरी तौर पर 600 अरब रुपए का कर्ज उतारने का फैसला। 600 अरब रुपए का कर्जा अदा करते तो साल के आखिर तक ये कर्जा 1100 अरब हो जाना था, लिहाजा आइंदा 4 माह में ये कर्ज उतार दिया जाएगा। और दूसरी तरफ बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली का बजट इजलास दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। सूबाई वजीर खजाना जमूर खान अचकजई बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट का हुजम 700 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। बलोचिस्तान के आइंदा बजट में सेहत कार्ड के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज दी गई है। जराये का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बलोचिस्तान एजुकेशन इंडोवमेंट फंड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। हुकूमत बलोचिस्तान पेंशन फंड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा सियासी मुशावरत के 12वें दौर तेहरान में मुनक्किद हुआ, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद खान और ईरान के नायब वजीर खारजा अली बागेरी कनी ने दोनों मुल्कों की क़ियादत की। मुलाकात में दो तरफा तिजारत को बढ़ाने, मतनू बनाने और तवानाई, ट्रांसपोर्ट, रवाबित, तालीम और अवाम से अवाम के तबादलों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में फरीकैन ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में करीबी ताउन को फरोग देने के लिए मुश्तरका इक्तसादी कमीशन और मुश्तरका तजारती कमेटी समेत मुख्तलिफ इदारा जाती मैकेनिज्म के बाकायदा इजलास की अहमियत पर जोर दिया। फरीकों ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और ECO समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने और मुश्तरका तशवीश के आलमी और इलाकाई मसाइल पर बातचीत को मजबूत बनाने के लिए अपने अज़म का भी अयादा किया। आपको बताएं कि यूनान जाते हुए कश्ती उलटने से लापता होने वाले पंजाब के 78 और जिंदा बच जाने वाले 12 नौजवानों की तफसीलात सामने आ गई हैं। यूनान कश्ती हादसे में गुजरात के लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई, जिनमें से 14 नौजवान अब्दुल्ला महदूम, अब्दुल्ला आफ्ताब, हामिद, उसामा दाऊद शहजाद, आमिर यूसुफ, हमाद सिद्दीक, खुरम भट्ट, अबूजर परवेज, शमशेर अली, सैयद इमरान और अली इम्तियाज थाना कुंजा की हदूद के रिहायशी हैं, जबकि 6 गोले की गांव, 3 कासिमाबाद, 5 टाहली साहब समेत कोट कुतुबुद्दीन के रहने वाले हैं। 5 नौजवान थाना शाहीन और सदर गुजरात की हदूद के रहायशी हैं, जिनमें मोहल्ला अमीनाबाद का पुलिस मुलाजिम अली रजा, रहमान अली, उस्मान जफर, अली सरवर और उस्मान अख्तर शामिल हैं। खानिया के एक गांव के 11 नौजवान लापता हैं, जिनके नाम इमरान हयात, अली हैदर, अफजल हयात, मुनीर इस्लाम, कासिम तालिब, शमरेज अहमद, आफ्ताब जाहिद, मियाँ बूटा, बाबर पहलू, मियाँ अब्दुल जब्बार और अब्दुल गुफार शामिल हैं। यूनान के करीब बहीरा रूम में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों के जहां बख्त होने वाले आज मुल्क भर में यौम सोक मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर 14 जून को यूनान में कश्ती उलटने के हादसे पर आज कौमी सोक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कौमी परचम सरनीगू रहेगा। जहां बख्त होने वालों के लिए खसूसी दुआ की जाएगी। वजीर आजम ने हादसे का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह की कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन DG नेशनल पुलिस ब्यूरो एहसान सादिक होंगे। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए वजीर आजम की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी लाहौर और कराची में गिरफ्तार एजेंटों से मुतल्लिक जांच पड़ताल करेगी। तहकीकाती कमेटी ने FIA से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी जावेद अहमद इमरानी, आज़ाद जम्मू और कश्मीर पूंछ रीजन के DIG सरदार जहीर अहमद और वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी फैसल नसीर भी कमेटी का हिस्सा हैं। खसूसी कमेटी यूनान में कश्ती डूबने के तमाम हकाइक जमा करवा चुकी है। इंसानी स्मगलिंग के पहलू की तहकीकात करके जिम्मेदारियों का तयन करेगी। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत कश्ती सानहे का शिकार अफराद के खानदानों की हर किस्म की भरपूर मुआवनत करेगी। यूनान कश्ती हादसे में अमवात एक बहुत बड़ा सानिया है। मुल्क भर के अवाम अपने भाइयों की दियार गैर में अमवात पर सोगवार हैं। पाकिस्तान भर में साहने पर कौमी सतह पर शोक मनाया जा रहा है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि दरिंदा सिर्फ इंसानी स्मगलरों के खिलाफ FIA हरकत में आ चुकी है। लाहौर और कराची में इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। इस सानहे में मुलविस मौत के तमाम अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी और इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरीक चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमली तौर पर यह इत्तेहाद खत्म हो चुका है, अब ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं आज अदालत में पेश हुआ, मेरे वकील अली बुखारी तैयार थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थोड़े से कंफ्यूज थे। जो कश्ती का वाकया हुआ इसमें 300 से जायद पाकिस्तानी हलाक हुए। वजीर आजम ने शौक का ऐलान किया, दुरुस्त किया, इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया, ठीक बनाया। उन्होंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म है। 300 घरानों के हालात को देखें। घर में सिफे मातम बिछी है और ये मालूम ही नहीं हो रहा कि आपका प्यारा जिंदा भी है कि नहीं। आज 3 दिन हो गए, दफ्तर खारजा खामोश है, हकायक नहीं बताए जा रहे। मैं समझता हूँ दफ्तर खारजा को इस मामले पर अवाम को आगाह करना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हम अपने 300 पाकिस्तानियों का सोग मना रहे हैं। लोग बेरोजगारी और मौशी कत्लेआम से बचने के लिए यूनान के समंदर में शहीद हो गए। ट्विटर पर एक पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि ये पहला वाकया नहीं है। जब 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए का होगा तो लोग जहर का घूंट पीने पर मजबूर होंगे। मुआशी, इक्तसादी और सियासी तबाही, कारखाने बंद, कारोबार बंद, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। इस अंधेरे से कैसे निकला जाए। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकये की सारी कौम ने मजम्मत की। वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का साहली इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का अमल जारी है। समुद्री तूफान बाइपरजॉय के खतरे के पेश नज़र साहली इलाकों से नकल मकानी करने वाले अफराद की इमदादी कैंपों से वापसी के अमल में सिंध रेंजर्स मुतासरीन के शाना बशाना है। कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का अमल जारी है। समुद्री तूफान बाइपरजॉय के खतरे के पेश नज़र साहिली इलाकों से नकल मकानी करने वाले अफराद की इमदादी कैंपों से वापसी का अमल भी जारी है। सिंध रेंजर्स और सिविल इंतजामिया की जानब से फराहम करदा गाड़ियों में मुतासरीन की अपने घरों में वापसी का अमल जारी है। सिंध रेंजर्स की जानब से गाँव वापसी पर मुतासरीन को राशन बैग्स जिसमें आटा, दालें, चीनी, खुश्क दूध और दीगर अशिया खुर्दनोश और पीने का साफ पानी तकसीम किया गया। सिंध रेंजर्स की जानब से मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं। तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक अहले इलाका ने रेंजर्स की जानब से किए जाने वाले इस इक़दाम को सराहा गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह तहसील कोट चट्टा के खाद और सीड्स डीलरों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर रखी है। हड़ताल की वजह से जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी से। जी नज़ीर, बताइएगा। जी, सुबह भर की तरह तहसील कोट में भी पेस्टिसाइड और खाद भी
तमाम लोगों ने हड़ताल कर रखी है, शटर डाउन दुकानें बंद करके बैठ गए हैं। इन्होंने कहा कि नकली इदारों की तरफ से नमाज रात में किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ पैंतीस साइड यूनियन के सदर असलम खान जलपानी मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जिस तरह ये असलम खान जलपानी कह रहे हैं, जिस तरह हमारा पैंतीस साइड यूनियन के तासीर के जनरल सेक्रेटरी वो मौजूद है, वो ये सवाल से क्या कहते हैं उनसे पूछते। आज के दिन बरोज़ सोमवार 19 जून को PPDA, PCPA, सीड एसोसिएशन और फर्टिलाइज़र की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई है। इस हड़ताल पर अमल दरामद करते हुए तमाम तहसील कोटचुका की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद हैं इस वक्त, और ताहुक्म सानी जब तक आला क़यादत की तरफ से कोई हुक्म नहीं आ सकता ये हड़ताल जारी रहेगी। और हुकूमत की तरफ से नाजायज़ हरासमेंट जो चल रही है, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से नाजायज़ हरासमेंट चल रही है, जब तक वो ख़त्म नहीं की जाती उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और हम कोई कारोबार नहीं करेंगे जब तक हमारी इज़्ज़त और अज़मत सलामत नहीं रहेगी। चिश्तियाँ बल्दिया इंतजामिया ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मेन शाहराहों पर साइन बोर्ड की भरमार, हादसात मामूल बनने लगे। बल्दिया इंतजामिया कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस पर खड्डियां के करीब पथराव किया गया। पथराव से एक खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद रोजाना गुजरने वाली ट्रेन पर पथराव करके फरार हो जाते हैं। खड्डियां खास के मकाम पर कबरकोट के करीब ट्रेन पर पथराव के वाक़यात बढ़ रहे हैं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमले ने मुसाफिर खातून को तिब्बी इमदाद देकर ट्रेन को रवाना कर दिया। एबटाबाद और गिरदनवाह में मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों के दरमियान झगड़े मामूल बनने लगे। तफसील जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, एबटाबाद में महकमे RTA ने नोटिफिकेशन तो जारी किया, लेकिन किरायों पर अमल दरामद बिल्कुल ना होने के बराबर है। एबटाबाद से वेलियाँ, हरीपुर, मनसर और दीगर मकामात के किरायों में मनमाना इजाफा किया जा चुका है। उसमें अभी तक कमी नहीं लाई जा सकी। हालांकि महकमे RTA ने नोटिफिकेशन कर दिया है। आखिर कौन इस पर अमल दरामद कराएगा, कब तक अवाम आपस में लड़ती रहेगी? हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद इसाक ज़करिया। उनसे जानते हैं कि वो इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं। जी, इंतज़ामिया नाम की तो कहीं आपको चीज़ नज़र आती नहीं है। और चूँकि RTA का जो आपने बात की है, RTA एक डिविजनल डिपार्टमेंट है जो पूरे डिवीज़न को देखता है और तमाम किराए जो वो डिविजनल डिपार्टमेंट ही तय करता है। अब यहाँ पर बड़ी बदकिस्मती है कि डिपार्टमेंट्स पे डिपार्टमेंट्स हैं, ओवरलैपिंग इतनी है, डिपार्टमेंट्स को अपने इख्तियारात का पता नहीं है। RTA अपना मलबा फेंकेगा आपके ट्रैफिक पर, ट्रैफिक वाले TMA पर, TMA वाले जनाब दूसरी अथॉरिटी पर फेंकेंगे। तो मतलब एक ऐसा सर्कल चल रहा है कि हर एक अपनी जिम्मेदारी से भागने का उसने एक जरिया पकड़ा हुआ है। RTA कहेगा हमने तो नोटिफिकेशन कर दिया, ट्रैफिक वाले करें, ट्रैफिक वाले कहेंगे TMA वाले अड्डों को डिसाइड करें। मतलब एक अजीब सा ड्रामा है। और TMA वाले कहेंगे कि इस पे असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अमल दरामद कराए। असिस्टेंट कमिश्नर से बात करेंगे तो वो कहेंगे जी ये तो हमारा इख्तियार ही नहीं है। मतलब अवाम को एक ऐसे निज़ाम के ऊपर छोड़ दिया गया जहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, बेनिज़ामी का वो हाल है। और RTA की अगर बात करें या दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो इनमें जो है ना वो एक माफिया मौजूद है। जो माफिया जो है अपनी यहाँ पे अड्डों से भी मंथलियाँ लगी हुई हैं, ड्राइवर यूनियन से भी मंथलियाँ लगी हुई हैं। मंथली पे कर देती है तो फिर डिपार्टमेंट जो भी हो, अफसर जो भी हो, जब उसको मंथली पहुंच जाती है तो फिर यूनियन की और उस माफिया की मर्जी के मुताबिक फैसले होते हैं। और जब उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले होते हैं तो आम आदमी कुचला जाता है और बड़ा नुकसान होता है। और माफिया एक दफ़ा भरपूर ज़ोर से जो है वो इस पे हुकूमत करता है। और ये जो लोग हैं वो सह रहते हैं, एक तर्ज तगाफुल है, सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है, सो वो हम करते रहेंगे। इनका तो तगाफुल बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाते रहेंगे कि इस तमाम से जो है वो एक आम आदमी और गरीब आदमी मुतासर हो रहा है। अच्छा, आए रोज़ लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, गाड़ियों में लोग ड्राइवरों के साथ लड़ पड़ते हैं, इसका हल क्या निकलेगा?
देखें जी, ये भी एक बड़ा स्ट्रांग माफिया मौजूद है। अगर कोई सवारी आपके ड्राइवर के साथ बात करती है कि आप ज़्यादा किराया ले रहे हैं, तो वो आपकी गाड़ी को भिगा के सीधा जनाब गाड़ी को भिगाएगा और अड्डे में ले जाएगा, और अड्डे में आगे एक पूरा जनाब निज़ाम मौजूद है जो पकड़ के उसको ना मारना शुरू कर देंगे। या ड्राइवर के साथ कंडक्टर और 2-3 आदमी होंगे अगर बड़ी गाड़ी है, तो वो उधर ही आपको सवारी से उतार कर आपकी तजलील करना शुरू कर देंगे। अगर आप गलती से वहाँ पर मौजूद किसी सरकारी एहलकार से बात कर लें, तो वो बजाय उनकी सरजनिश करने के उल्टा उस आम आदमी पर चढ़ाई कर देगा, चूँकि उनके अफसरान को मंथली मिल रही होती है, तो उन्होंने। दूसरी जानिब पंजाब भर में पेस्टिसाइड डीलर्स की हड़ताल जारी है। डीजी खान रीजन, मुल्तान रीजन, साहिवाल, भावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला रीजन समेत पंजाब भर में पेस्टिसाइड डीलर्स की हड़ताल आज भी जारी है। हड़ताल की वजह से कपास पर सब्ज तेले का शदीद हमला लाहक हो गया। इस हवाले से काश्तकारों को काफ़ी परेशानी का सामना है। किसानों का कहना है कि अगर हड़ताल ख़त्म ना हुई तो उन्हें फसल से लाखों का नुकसान हो सकता है। पंगड़ियों में एहसास कफालत सेंटर पर मुस्तहिकीन में रकम की तकसीम का अमल शुरू ना हो सका। खवातीन की बड़ी तादाद अपने बच्चों के हमरा शदीद गर्मी में इंतज़ार करने पर मजबूर। सख्त धूप में पीने का पानी भी ना होने की शिकायत। सेंटर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रफाकत अली अराई सेंटर का अहवाल बता रहे हैं। जी रफाकत, क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंगड़ियों गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहां जिले इंतजामिया की तरफ से BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर कायम किया गया है। यहां पे पंगड़ियों और मलकानी 0 पॉइंट के गिरदोनवा की 20,000 से ज्यादा मुस्तहिक खवातीन को रकम की तरसील की जाएगी। इस वक्त जो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो किस्त की रकम आई है, अभी तक सेंटर यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे साथ कुछ अफराद मौजूद हैं जिनकी खवातीन यहाँ आज सुबह से आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ मासूम शीरख्वार बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं। कुछ हामला खवातीन यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या सहूलियत हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं। यहाँ पे कुछ अफराद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या सहूलियत है। अभी तक सबको 9 बजे से आए हैं, कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। नहीं सेंटर चल रहा है, नहीं कुछ, नहीं पैसे चला रहे हैं, नहीं कुछ, नहीं पानी का इंतजाम है, नहीं कुछ। हम तो ऐसे ही खड़े हुए हैं सबू से। 9:40 पे आए हैं, अभी तो कोई पैसा वगैरह भी नहीं चला है। क्या करें हम, बताओ तो। पता नहीं क्यों नहीं चला रहे, वो अपनी अड़ियाँ करके बैठे हैं कि पैसे काटे हम। शदीद गर्मी में आप बाहर खड़े? हाँ, शदीद गर्मी है। हमारे बच्चे तंग हो रहे हैं, कितने बच्चे खड़े हुए हैं देख ले। उनके लिए पानी भी नहीं है, यहाँ पे पानी वगैरह नहीं है। जी, आपने यहाँ पे मौजूद अफराद की बात सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ पे जिला इंतजामिया या टाउन इंतजामिया की तरफ से कोई भी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। खबर शामिल करेंगे भावल नगर से, जहां तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी कई दिनों से नायाब हो गई है। प्राइवेट दुकानों पर चीनी 140 रुपए किलो, जबकि 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। जी शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर यूटिलिटी स्टोर पर। यहाँ पर आटा चीनी जो है वो नायाब हो चुका है। गरीब तबका परेशान दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक मजदूर आदमी, इनसे हम बात करें। सर, आप क्या लेने आए थे? आप? मैं बहावल नगर यूटिलिटी स्टोर से आटा लेने के लिए आया था और कई दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ। यहाँ आटा मुहैया नहीं हो रहा, आटा आ ही नहीं रहा कई दिनों से। चीनी भी नहीं है, कई दिनों से घी आटा चीनी मिल ही नहीं रहा। यानी कि दिहाड़ीदार तबके हैं, दिहाड़ी करते हैं, अपना पेट कैसे पालते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले बाहर से ली थी आटे की थैली 1100 कुछ रुपए की। जब दूसरी दफ़ा लेने के लिए गए तो 1200 कुछ रुपए की। आज मैंने रेट पूछा तो 1300 साढ़े 1300 रुपए का। तो वो अर्ज ये करनी है कि गरीब तबका कहाँ जाए, मरे से मरे जा रहे हैं, नीचे से नीचे जा रहे हैं, गुजारा नहीं हो रहा है। अर्ज ये है कि इनको आटा चीनी मुहैया की जाए यूटिलिटी स्टोरों पर, ताकि आप कहते हैं गरीबों के लिए तो कुछ मैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा। जी, जैसा कि आपने सुना इस गरीब तबके की बात, इसका कहना है कि आटा जो है बाहर 1350 रुपए की दस्तियाब है 10 किलो वाली थैली। तो चीनी जो है 120 और 150 रुपए किलो यानी मुहैया हो रही है। कहता है यूटिलिटी स्टोर की जाने जब रुख करते हैं तो यहाँ पर ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। कई दिनों से यहाँ पर चक्कर काट कर हम थक चुके हैं। ये मौजूदा हुकूमत से ये पुरजोर अपील करते हैं, खुदारा गरीब आदमी के। पंजाब के
भर की तरह चूनिया के इलाका छंगामांगा में भी ज़राई अद्वियात दुकानों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के बायस फसलों को शदीद नुकसान का खदशा है, जिसके बायस किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अद्वियात डीलर्स का कहना है कि हुकूमत से मुतालबा तस्लीम होने तक हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर में कायम गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। डीसी लाहौर ने गैर कानूनी मंडियों कवानीन की रोकथाम के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। शहर में खुलेआम जानवरों की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था, ज़िले इंतज़ामिया के मखसूस पॉइंट्स पर मवेशी मंडियों की इजाज़त दी गई है। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और ख़रीदारों के लिए MCL इंतजामात यकीनी बनाए। गैर कानूनी मंडियों की वजह से ट्रैफिक समेत शहरियों के लिए शदीद मसाइल पैदा होते हैं। वाहगा जोन में LWMC डंपिंग पॉइंट्स के करीब मवेशी मंडी कायम है। निस्टर टाउन में मंडियाँ डिफेंस रोड, LDA एवेन्यू 1 और पाइन एवेन्यू रोड पर हैं। अजीज भट्टी टाउन में बरकी रोड पैरागॉन सोसाइटी के करीब मवेशी मंडी लगाई गई। रावी टाउन में सगिया लिंक रोड जबकि दादागंज बख्श सगिया रोड पर मंडियाँ कायम हैं। पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप शाहीन क्लब ने जीत ली। SA गार्डन की टीम ने दूसरी, हैदराबाद क्लब ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। लाहौर पोलो क्लब में इख्तितामी तकरीब का इनकाद किया गया। DG PHA लाहौर मोहम्मद ताहिर वटू ने टीमों पर इनामात तकसीम किए। तकरीब में डायरेक्टर एडमन PHA सैयद मूसा अली बुखारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जलानी पार्क और तर्जुमान PHA ने शिरकत की। पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में 200 से ज़ायद घुड़सवार नेज़ाबाज मर्द और ख़वातीन ने हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक रुकने सूबाई असम्बली पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पंजाब के नौजवानों को लैपटॉप स्कीम के जरिए हसूल इल्म और रोज़गार के मौक़े फराहम करने पर वफ़द का वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश। वफ़द ने बजट में किसानों और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की बेहतरी के लिए मुतहरिक। कमिश्नर का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत का अचानक दौरा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की बेहतरी के लिए मुतहरिक है। कमिश्नर नादिया साकिब ने आज सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कोट लखपत का अचानक दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात, ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, ICU वार्ड का जायजा लिया। कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी और मेडिकल स्टोर का मुआयना किया। अस्पताल में सफाई सुथराई के मेयार और डॉक्टर्स व अमला की बरवक्त हाजिरी को खुसूसी तौर पर भी चेक किया। कमिश्नर ने अस्पताल में दाखिल मरीजों से अस्पताल के तहत मिलने वाली सहूलियात बारे बातचीत की। कमिश्नर पैसी ने OPD में मौजूद लोगों से स्टाफ के रवैये बारे खुसूसी गुफ्तगू की। अस्पताल MS ने कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को अस्पताल की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने अस्पताल में कायम ICU वार्ड में मजीद बेहतरी के अहकाम जारी की और मेडिकल स्टोर के लिए भी अस्पताल में बेहतर जगह मुख्तस करने की हिदायत की। जी बहुत शुक्रिया सलमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।